السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حفظ قرآن کی بات کی جائے تو اس چھوٹے سے شہر بھٹکل میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ نظر آئیں گے۔ 5 سال کی بچی سے لے کر 60 سال سے زائد کے عمر کے افراد کے حفظ قرآن کی سعادت سے سرفراز ہونے کی کئی ساری مثالیں آپ کو یہاں مل جائیں گی۔ درجہ حفظ میں باقاعدہ داخلے کے علاوہ اپنے عصری اور دینی تعلیمی مشغولیات کے ساتھ بھی حفاظ کی فہرست میں شامل ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آپ کو مل جائے گی۔ گزشتہ روز اسی طرح کا ایک کارنامہ جامعہ اسلامیہ سے امسال فارغ ہونے والے نوجوان عالم دین شیمان ملا نے کر دکھایا ہے۔ گزشتہ روز مسجد الوا میں ان کے اعزاز میں ایک روحانی مجلس سجائی گئی تھی، جس میں استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبد المحیط ندوی نے ان کا ختم قرآن کرایا۔ اس موقع پر امام مسجد اور محلے والوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے اور انہیں انعامات سے بھی نوازا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ حفاظ قرآن کی فہرست میں شامل ہونے پر خود مولوی شیمان کا کہنا ہے کہ اللہ کا کلام اگر کوئی اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ الحمدللہ، بعد اللہ کی توفیق سے میں حفاظ کے زمرے میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس وقت میں سب سے پہلے اپنے استاد مربی مولانا عبد المحیط صاحب خطیب ندوی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر وقت ہر آن میری فکر کی اور مجھے حافظ قرآن بننے تک آخری درجے کی کوشش کی۔ کہ میں آخری عصر میں اعتکاف میں ہونے کے باوجود انہوں نے مسجد میں آ کر کے مجھے اس کی تکمیل کی۔ جو آدمی ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں اور ہمیشہ حافظ ہونے کا آپ سب ارادہ کریں۔ ادارہ فکر و خبر بھی انہیں حفظ قرآن کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ بہرحال جو لوگ حافظ قرآن بننے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن وہ اب بھی پس و پیش میں مبتلا ہیں، تو ایسے نوجوان ان کے لیے نمونہ ہیں جن کے لیے دوسری مشغولیات بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور جو بہانہ بناتے رہتے ہیں تو ان کا وقت تو بہانوں میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ امیش پال قتل معاملے کے نام پر جو کھیل شروع ہوا تھا، لگتا ہے اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ 6 سال سے جیل میں بند ایک شخص پر صرف الزام لگا کہ اس نے قتل کی سازش کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جائیدادیں مسمار کر دی گئیں۔ بیوی، بھائی، بیٹوں پر کیس درج کر لیا گیا، کئیوں کو گرفتار کر لیا گیا، کئی فرار ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں میں پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا، محض اس الزام کی بنا پر کہ انہوں نے سازش رچی تھی قتل کی۔ جی ہاں، یو پی میں عتیق احمد اور ان کے بھائی کو بھی اب قتل کر دیا گیا ہے اور ایک پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات پولیس عتیق اور اشرف کو معمول کے میڈیکل چیک اپ کے لیے پریاگ راج کے کولون اسپتال لے گئی تھی۔ دونوں کو یہاں 5 روزہ ریمانڈ پر لایا گیا تھا۔ ان دونوں کے آگے 4 پولیس اہلکار جدید ترین رائفلیں لے کر چل رہے تھے اور بہت سے میڈیا والے مائک پکڑ کر ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور اسی دوران 3 حملہ آوروں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور وہ جے شری رام کا نعرہ لگا رہے تھے اور اسے ایک طرح سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اور اب بھی آپ میڈیا کی کوریج اگر دیکھیں تو وہ اب بھی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جن لوگوں نے سر عام ان کا قتل کیا، نہ تو ان کا کوئی انکاؤنٹر کیا گیا ہے بلکہ پولیس نے انہیں اطمینان کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ امیش پال کی شوٹنگ میں شامل تھے، جن کی ویڈیوز سامنے آئی تھی، یوگی پولیس نے ان لوگوں کا سب سے پہلے انکاؤنٹر کر دیا تھا اور پھر پورے عتیق کنبے کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ سچائی لوگوں کے سامنے آئے کہ آخر امیش پال قتل کس نے کروایا تھا۔ یو پی میں اسے غنڈہ راج کی مثال نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ میڈیا نے بھی اس میں خوب اپنا کردار نبھایا ہے۔ صبح سے شام تک زہر اگلا جاتا رہا۔ پورے معاملے میں عتیق احمد اور ان کے خاندان کو ایک راکشس کے طور پر پیش کیا گیا۔ عتیق کی اہلیہ شائستہ پروین، جس پر 50,000 روپے کا انعام ہے، وہ اب بھی مفرور ہیں اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں عمر اور علی جیل میں قید ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نابالغ بیٹے پولیس کی کڑی نگرانی میں چلڈرن پروٹیکشن ہوم میں رہ رہے ہیں۔ وہیں اس قتل نے نظام قانون پر بھی سوال ضرور کھڑے کیے ہیں اور یو پی میں اپنے حریفوں کے تئیں حکومت کا رویہ کیسا ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ وہیں اسی دوران اتر پردیش حکومت کے وزیر اور بی جے پی رہنما سریش کمار کا بیان سامنے آیا ہے جو بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو کچھ فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اس طرح کا بیان جو ہے انہوں نے اس عتیق احمد کے قتل پر اس طرح کا جو ہے انہوں نے وہ بیان دیا ہے۔
वहीं अगर ये बात की जाए कि ये यूपी हुकूमत का इंसाफ का पैमाना है तो फिर कार्रवाई सिर्फ अपने हरीफों के खिलाफ ही क्यों की जा रही है, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। वही मरकज़ी वज़ीर के बेटे जब किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं तो फिर भी उन जैसे लोगों का ज़मीर नहीं जागता और कोई कत्ल के लिए नहीं दौड़ता, किसी के दिल में ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ कोई गुस्सा नहीं होता। मासूमों की इसमत रेज़ी होती है तो लेकिन हिंदुत्व तंजीमों पर कोई असर नहीं होता। कोई अदालत के बाहर जय श्री राम के नारे लगाता नहीं मिलता। नासिर जुनैद का कत्ल होता है, बहीमाना तरीके से उन्हें जला दिया जाता है, किसी के दिल उनके लिए नहीं तड़पते। हाँ, यहाँ भी जय श्री राम के नारे लगते हैं लेकिन कातिलों की हिमायत में। लेकिन इस कत्ल ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यही पैटर्न अब दूसरी रियासतों में भी लागू किया जाएगा। जिस तरीके से बुलडोज़र कल्चर को फ़रोग़ दिया गया, क्या उसी तरह इस तरह का ये भी पैटर्न जो है वो इस तरह लागू किया जाएगा। कई तरह के सवालात हैं, कई तरह के ख़दशात हैं जो इस कत्ल के बाद जन्म ले रहे हैं। बहरहाल अतीक अहमद के एक बेटे जो इस वक्त जेल में हैं, वो अपने वालिद के कत्ल की खबर सुनकर बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और कुंबे की हालत इस तरह हो गई है कि किसी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं मिला और जो ज़िंदा रह गए उनका केस लड़ने वाला तक अब कोई नहीं बचा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस कत्ल पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि जिस माशरे में कातिल हीरो बन जाएं, उस माशरे में अदालत और निज़ाम अदल का क्या फ़ायदा। ओवैसी ने कहा कि अतीक और उसका भाई पुलिस की हिरासत में थे, उसे हथकड़ी लगी हुई थी, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों के कत्ल को योगी के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की नाकामी करार दिया है। वहीं इनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। इस तरह का ट्वीट भी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। वहीं ओवैसी की पार्टी के एक और रहनुमा वारिस पठान ने कहा कि ये कत्ल अदालत, कानून और आइन तीनों का कत्ल है। वहीं उत्तर प्रदेश में तमाम अदालत बंद कर देनी चाहिए, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जराइम उरूज पर पहुंच चुके हैं और मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के घेरे में खुलेआम फायरिंग करके किसी को मारा जा सकता है तो फिर आम लोगों की हिफाजत का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात की वजह से अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू दी वायर पर शाये किया गया था, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई सनसनीखेज़ दावे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा दावा ये था कि उन्होंने सिक्योरिटी में चूक को लेकर वज़ीर आज़म मोदी से बात की थी, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें खामोश रहने को कहा। वहीं अब इस मामले पर महाविकास अघाड़ी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक के ज़रिए हफ्ते के रोज़ पुलवामा हमले समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर दिए गए बयानात पर सफाई देनी चाहिए। सत्यपाल मलिक के ज़रिए बदउनवानी, किसानों और फरवरी 2019 के पुलवामा हमले को संगीन और सीधे तौर पर कौमी सिक्योरिटी से जुड़ा मसला करार देने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले, एनसीपी तर्जुमान महेश तापसे और शिवसेना के कौमी तर्जुमान किशोर तिवारी ने कहा कि इल्ज़ामात की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो लोगों के जहन में शुबा पैदा होता है और सवाल उठता है कि जवानों के लिए हवाई जहाज़ भेजने के मुतालबे को आखिर क्यों खारिज किया गया था और इस्तेमाल किया गया 300 किलो RDX कहाँ से आया और कुछ दीगर ख़तरनाक खामियां भी हैं जो मोदी हुकूमत पर उंगली उठाती हैं। वहीं कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने सत्यपाल मलिक के इस इल्ज़ाम का भी तज़किरा किया, जिसमें कहा गया था कि RSS लीडर राम माधव ने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। पटोले ने कहा कि ये मोदी और बीजेपी के ज़रिए ही मुकर्रर साबिक़ गवर्नर बोल रहे हैं और जो लोग दावा करते हैं कि वो किसी भी बदउनवान शख्स को नहीं बख्शेंगे, लेकिन वो अब इस मामले पर पूरी तरह से खामोश हैं। दरअसल उनका इशारा वज़ीर आज़म मोदी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने CBI और ED और जांच एजेंसियों से कहा था कि वो बेफिक्र होकर काम करें। कर्नाटक इंतखाबात से कबल बीजेपी के एक और बड़े लीडर ने ऐलान किया है कि वो इतवार को पार्टी छोड़ देंगे। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला जगदीश शेट्टर ने कहा कि पार्टी ने उनकी तस्दीक की है और जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी के आला अहदेदारों ने हफ्ते को शेट्टर को तसल्ली देने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मीटिंग वो नाकाम रही। वहीं बीजेपी के साबिक़ डिप्टी CM लक्ष्मण सवदी जुमे को कांग्रेस में शामिल हो गए थे जब उन्हें अथानी असम्बली हल्के से टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। वहीं कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने जगदीश शेट्टर के इस्तीफे पर रद्दअमल जाहिर किया है और कहा कि ये साबिक़ वज़ीर आला की तरफ से एक बदकिस्मत इक़दाम है। उन्होंने इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ किया है कि उनके इस्तीफे से हुबली धारवाड़ खित्ते में पार्टी पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। उनके इस्तीफे से पार्टी पर थोड़ा सा असर पड़ेगा लेकिन हम उस पर काबू पा लेंगे, ये कहना था वज़ीर आला बोम्मई का। उन्होंने कहा कि बीजेपी नौजवान नस्ल को मौका देना चाहती है
वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर एम वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी आइंदा असम्बली इंतखाबात में कम अज़ कम 130 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि ये इंतखाब बीजेपी को जुनूब में दाखिल होने से रोक देगा। बता दें कि कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त जब जारी कर दी थी, तब से ही बीजेपी में बवाल शुरू हो गया था और कुछ साबिक उम्मीदवारों ने लिस्ट में अपना नाम न देखने के बाद उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने हफ्ते को कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त का ऐलान कर दिया है, जिसने कोलार से असम्बली इंतखाबात लड़ने के लिए सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया की दरख्वास्त को ठुकरा दिया है। उन्हें टिकट वहां से नहीं दी गई है। उस सीट से मंजूनाथ के नाम का ऐलान किया गया है। अब मंजूनाथ ने उस सीट को सिद्धारमैया के लिए छोड़ने की भी बात कही है। बता दें कि गुज़िश्ता 6 माह से इस हल्के में तशहीर की जा रही थी कि साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया कोलार हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। और सिद्धारमैया ने भी 5 या 6 बार कोलार का दौरा किया था और इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी रहनुमाओं से बातचीत भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त में सिद्धारमैया की जगह किसी और को टिकट दे दिया गया है, जिससे कारकुनों में गुस्सा भी पाया जा रहा है। वहीं हफ्ते के रोज़ कांग्रेस कारकुनों और सिद्धारमैया के हामियों ने अपने गुस्से का भी इजहार किया और सिद्धारमैया को कोलार से टिकट देने का मुतालबा किया। वहीं कोलार हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मंजूनाथ ने भी कहा कि सिद्धारमैया को कोलार हल्के से उम्मीदवार होना चाहिए, अब भी मौका है। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो उनके बजाय वो सिद्धारमैया को मैदान में उतारें। वहीं दिल्ली के बंगाली मार्केट वाक़ मस्जिद में मौजूदा मदरसे को मुनहदिम किए जाने का मामला अब सुर्खियों में है। इस मामले में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर चौधरी अनिल कुमार ने बीजेपी क़यादत वाली मरकज़ की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। चौधरी अनिल कुमार ने बंगाली मार्केट की मस्जिद का दौरा भी किया और कहा कि माह रमज़ान में मस्जिद की तामीरात को नाजायज़ ठहराकर बग़ैर कोई नोटिस या इत्तला दिए बुलडोज़र चला देना ये बेहद अफसोसनाक अमल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की हुकूमत के ज़रिए की गई कार्रवाई की दिल्ली कांग्रेस वो मजम्मत करती है। वो चौधरी अनिल ने मज़ीद कहा कि इस मस्जिद में चले बुलडोज़र पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली वक्फ बोर्ड की खामोशी भी फ़िक्र अंगेज़ है। तो नाज़रीन, बढ़ते आलमी खबरों की तरफ। दुबई के इलाके अलरास में कायम रिहायशी इमारत में आग लग गई है, जिसके बायस 16 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दुबई के शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या डेरा दुबई की रिहायशी इमारत अलरास में पेश आया है, जहाँ दुबई सिविल डिफेंस ऑपरेशन रूम को 12:30 बजे उसकी आग लगने की इत्तला मिली थी। वहीं उनका कहना है कि इमारत में 4थी मंजिल पर अपार्टमेंट में आग लगी थी। वहीं आइनी शाहिदीन के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 पाकिस्तानी अफराद हैं और दीगर 2 ममालिक के शहरी भी शामिल हैं। वहीं तर्जुमान का कहना है कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि इमारत में हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद न होने की वजह से आग लगने का वाक़या पेश आया था। वहीं अभी तक आतिशज़दगी की असल वजह सामने नहीं आ सकी, ताहम मुतल्लिक़ा हुक्काम वजूहात के बारे में तफसील और जामे तहक़ीक़ात कर रहे हैं। वहीं सूडान की फ़ौज और बदनामी ज़माना नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई ने मुल्क को हिला कर रख दिया है, जिसमें 50 से ज़ायद शहरियों की हलाकत की इत्तला है। सूडानी पैरामिलिट्री ग्रुप RSF ने दावा किया है कि उन्होंने सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि आर्मी और फोर्सेस के दरमियान तनाव तशद्दुद में तब्दील हो गया है। RSF ने एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने खर्तूम, मरवा और अल-अबीद के एयरपोर्ट्स का कंट्रोल भी संभाल लिया है, जबकि खर्तूम एयरपोर्ट के अंदर और बाहर लड़ाई बंद कर दी गई है। वहीं रॉयटर के एक सहाफ़ी ने बताया कि सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, जबकि वीडियो में खर्तूम के हवाई अड्डे पर एक सिविलियन तैयारे को आग लगाते हुए भी देखा गया है। सऊदी एयरलाइंस सऊदिया ने कहा कि उसकी एक एयरबस आग की जद में आ गई। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुताबिक वो सूडान आर्मी की वजह से जवाबी इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी ने उनके बेस पर हमले कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ सूडान आर्मी ने अपने बयान में कहा कि वो खर्तूम में RSF से लड़ाई कर रहे हैं और ये ग्रुप मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। बता दें कि 2021 में बगावत के बाद से आर्मी का सूडान पर कब्ज़ा है और उन्होंने तवील अरसे तक सदर रहने वाले उमर अल-बशीर को हुकूमत से बाहर कर दिया था। तो नाज़रीन, ये खबरें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।